As all of you know, that yesterday was the first class of BWCS, and I'm gonna brief you about, or I'm gonna give you the yesterday's class that was about paper pattern. BWCS stands for business writing and comprehension skills. If you talk about the paper pattern, for example, be a computer-based exam, right? You're not supposed to write anything. Typing ही करनी होगी आपको जो भी questions आते हैं. If you talk about the questions, there will be total 4 questions in your exam. And for solving those 4 questions, you'll have how much time? 2 hours time will be given. And now if we go towards the details of the question, first question will be vocabulary in the form of MCQs or column matching. Good. And it will contain how many marks? 20 marks. 20. In the form of MCQs or in the form of column matching, total marks 20, 10 statements, 2 marks for each, right? What about the second question? Letter. गलती हैं आप तो बोल क्यों नहीं रही? नहीं, आपके पीछे जो बच्चे ने Mahanur. What about the second question? Letter writing or memo writing? Letter writing तो आपको पता क्या है? Memo writing is, you can say it's a short form of letter writing. Letter is we use for external communication and memo writing we use for internal communication. अगर कंपनी की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो कम्युनिकेशन है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर राइटिंग, और जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की कम्युनिकेशन होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मेमो राइटिंग. Is there will be any choice? No, only one question will be in your exam, either memo writing or letter writing. One question. 2 question, total marks 40 till now. What about the third one? Comprehension. Essay writing. It's the only question. You're gonna have a choice. 2 तरह के essays आएंगे और एक आपने अटेम्प्ट करना है, और चॉइस में क्या होगा, 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगी. एक में आपको फिश बोन डायग्राम के जरिए सॉल्व करना है, सेकंड में by using the affinity diagram. The difference is what's the difference between fishbone and affinity? In fishbone, you are supposed to write causes and effects and ideas. Okay, that's it. And what about the marks? 30 marks for essay writing, 10 marks for you can say headings or causes, effects, or main and sub ideas, and then 20 marks paragraphs for essay writing. Is that clear? Till now, we discussed the 3 questions and total marks are 70 marks. Newcomers के लिए सब कुछ बता रही हूँ मैं. And the last question is comprehension. Marks? 30. Ratio? 20 plus 10, 20 marks for MCQs. From the given passage, you will supposed to solve the MCQs. There will be 10 statements, 10 MCQs, 2 marks for each. So 20 marks वहाँ के हो गए, and then 10 marks for Summary. writing. Pressy means central idea, main points, और theme. ठीक हो गया, good. बेटा आप आगे आ जाओ. महनूर, yes. और आप तीनों भी जो एंड पे आए, आप इनकी जगह पे आ जाओ. Is it your first class or second class? Oh my God. It means I have to repeat the same thing again.
हाँ, चले अब देखते हैं, आप लोगों की स्किल्स चेक करते हैं। आप लोगों में से कोई स्टूडेंट स्टेज पे आएगा और पेपर पैटर्न जल्दी से बेटा आप तीनों के लिए अभी मैं रिपीट करवा रही हूँ, अभी ये सारी चीजें हमने अभी अभी डिस्कस की हैं। So try to be on time next time. Okay, that's great. What's your name? फरीहा। फरीहा बहुत अच्छी टीचर बनने वाली है अगर टीचिंग करके। क्लैप फॉर फरीहा प्लीज। थैंक यू जी। बेटा कुछ समझ आई? आप लोगों से नहीं पूछ रही, ज्यादा लेट आए हैं। वाई यूर लेट? आप तीनों ही अभी आए ना एंड पे, लेट क्यों है? सॉरी, आप पहले आ गए थे। आप दोनों लेट आए हैं, वाई सो? रास्ते में? ओके। Anyhow, as we discussed yesterday, that we will take start from the chapter number 4, that is vocabulary. vocabulary का जो पार्ट है बहुत लेंथी पार्ट है। इसको हम ये नहीं है कि जिस तरह से हमने लेटर्स का पार्ट स्टार्ट किया वो वाला एंड हो गया, फिर नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे, तरी हमारी टिल लास्ट डे चलती रहेगी। क्योंकि सिर्फ 3000 वर्ड लिस्ट वो है जो हमारी आई कैप की गिवन है, उसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं। तो वो डेली बेसिस पे वोकैबुलरी हमारी चलती रहेगी। इनिशियली हम सिर्फ वोकैबुलरी लेकर चलते हैं, उसके बाद फिर हम साथ में लेटर राइटिंग या मेमो राइटिंग को ये क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे, और उसके साथ साथ वोकैबुलरी एंड एनी अदर क्वेश्चन जो भी हम स्टार्ट करेंगे साइड बाय साइड करेंगे। क्लियर? So let's move. Come on, page number 67. जी अभी आए हैं, और इसके अलावा जो आज 3 न्यू कमर थे, पेपर पैटर्न से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन कुछ समझ ना आया हो, यू कैन आस्क। What's your name? Both of you. Sorry? Waleed. From where? Okay, what about you? Next, please. Again. Zaim. From where? Rahim Yarkhan. Page number 79, right? 67. It's 79. Okay, synonym. Meanings. उसके अलावा ये बात नहीं आ रही, मैं बोल नहीं रही। Yes, Mahanur. Okay. Am I audible now? महानूर अभी आवाज आ रही है आपको? मैम आपकी आवाज ना कट के आ रही है। कट के आ रही है? सिग्नल्स का कोई इशू हो? That's all clear. Okay, that's clear for others. Yeah. It means महानूर आपकी साइड पे कोई सिग्नल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, आप सकते हो तो। और बाकी सारे स्टूडेंट्स काइंडली अपने माइक्स ऑफ रखें। एनी हाउ लेट्स टेक स्टार्ट। इसमें
रीडिंग स्टार्ट करनी है, पूरी क्लास में सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे, बट आपकी जो है साउंड जो है वो क्लियर होना चाहिए, लेकिन शोर ना हो। आपको पढ़ने का क्यों कहा जा रहा है? देयर आर डिफरेंट रीजंस बिहाइंड। फर्स्ट थिंग इज कि जब आप पढ़ेंगे, अभी एक तो प्रोनाउंसिएशन इशू अगर कोई है तो वो साथ साथ क्लियर हो जाएगा। सेकंड थिंग इज कि जब एक दफा आप क्लास में एक चीज को रीड आउट कर लेते हैं, फिर जब आप घर जाके पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो दोज थिंग्स आर गोना बी। यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टू इसके पेज या फर्स्ट थ्री पेज आप लर्न करके ले आए, दैट्स गोना बी माइट बी डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स। Anyhow, yes, what's the first word? Abandon mean? Leave? छोड़ देना. Next. सबकी आवाज आए मुझे. Mean? It's desert or desert? What's the difference between desert and desert? Okay, spelling difference क्या है? डबल एस किस में आता है? डेजर्ट में आता है और डेजर्ट में सिंगल एस आता है. डेजर्ट मीन एंड डेजर्ट मीन स्वीट डिश. मोस्ट प्रोबेबली जो हम से मिल्क से बनने वाली जो स्वीट डिशेस होती है, वी यूज द वर्ड डेजर्ट फॉर दैम. सो अबंडन एंड डेजर्ट जो है ये सिनोनिम. अकेलापन, तन्हाई, छोड़ देना. अच्छा, यहाँ पर जब आप वोकैबुलरी करेंगे, the purpose is to understand the sense of that word, to clear the sense of that word. For example, अगर हमारे पास 3000 लिस्ट वो है, ये है, तो दिस इज द ओनली क्वेश्चन इन BWCS जिसमें आप रट्टा लगा सकते हो. इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रट्टे के जरिए आपका क्लियर होगा. इट्स द ओनली क्वेश्चन. लेकिन फिर भी आपको इसकी सेंस क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश में जितने भी हमारे पास वर्ड्स आते हैं, एवरी वर्ड हैव मिनिमम 24-5 सिनोनिम्स और मीनिंग्स. तो आपको अगर उस वर्ड की सेंस क्लियर होगी तो आपके एग्जाम में किसी भी तरह से आ सकता है, या उसका कोई भी मीनिंग आ जाता है तो आप कॉलम मैचिंग कर लेंगे, या अगर आपके पास MCQs फॉर्म में आ जाता है तो आपको वर्ड क्लियर है तो स्टेटमेंट को पढ़ के आप राइट आंसर चूज कर सकते हैं. और अगर आपको वर्ड, फॉर एग्जाम्पल लंडन और डेजर्ट का कनेक्शन आपको समझ नहीं आया, तो जितना भी आप रट्टा लगा लें, हो सकता है एग्जाम में जाके आप भूल जाएं कि अबंडन का हाँ लीव तो था, डेजर्ट तो समथिंग एल्स. यहाँ पर क्या है, आपने इस कनेक्शन को समझना है. अब जो वर्ड्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इट माइट बी पॉसिबल कि जो यहाँ पर सिनोनिम्स गिवन है आपको वो पहले से आते हो, एंड इट ऑल्सो पॉसिबल कि जो यहाँ पर सिनोनिम्स है वो आपको नहीं आते हो, कोई और सिनोनिम्स आपको आते हैं. उस केस में आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप गूगल करते हैं तो आपको रेलेवेंट और मीनिंग्स मिलते हैं. उस केस में आप क्या कर सकते हैं, वोकैबुलरी ऐड ऑन तो कर सकते हैं अपनी बुक में. आपको जो और मीनिंग मिल रहे हैं या ऑलरेडी जो आपके पास इसके सिनोनिम्स हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं, बट जो बुक में गिवन है वो आप याद करेंगे. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कल मैं आपसे सुनूं और आपको जो पहले से कोई सिनोनिम आता है आप वो सुना दो और आप कह दो कि ठीक है सिनोनिम तो सुना दिया है. इट्स कंपल्सरी. और वोकैबुलरी का डेली बेसिस पे आपको ऑरल टेस्ट होगा. आप पिछला सुनाएंगे तो हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करेंगे. तो ये है कि जो आपके पास एक्स्ट्रा वोकैबुलरी है, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है. उसके साथ साथ जो हमारी बुक पे गिवन है वो वर्ड टू वर्ड आपने याद करना है और अंडरस्टैंड करना है. इज दैट क्लियर? ओके जी, व्हाट्स द नेक्स्ट वर्ड? अबाउट, अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन. नेक्स्ट, ओवरसीज मीन बैरून मुल्क, मुल्क से बाहर रहने वाले अफराद. नेक्स्ट, एब्सेंट एंड अवे, ये कैसे सिनोनिम हुआ? अवे मीन्स एंड एब्सेंट एंड अवे, सॉरी, जो गैर हाजिर है डेफिनेटली वो यहाँ नहीं है तो वो दूर है. बस ऐसे ही हमने कनेक्शंस बनाने हैं. ओके, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वर्ड?
Abstract mean summary, central idea, main idea. Abundant, जो शहजादे नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे? कुछ लोगों की बोलने की आवाज नहीं आ रही है मुझे, why so? Okay, what's the next word? Abundant? Plenty means ज्यादा हो ना? Okay, next. What's the difference between accomplish and achieve? Accomplish mean and achieve means okay. Accomplish means somehow मुकम्मल कर and achieve हासिल करना. So they have the correction. हासिल करना. Next. Meaning? Okay, next. Accused, blame, blame, इल्जाम लगाया. Okay, next. Achieve, accomplish. Words की repetition हो रही है, so it's the same word. Next. Behave, मतलब अमल, रवैया. Next. एक्स्ट्रा इजाफी. बहुत इजी वर्ड्स हैं, आई नो आप लोगों को मीनिंग्स आते हैं, बट साथ में हम उर्दू मीनिंग्स इसलिए डिस्कस कर लेते हैं. इट माइट बी पॉसिबल किसी स्टूडेंट के लिए कोई वर्ड न्यू हो, मिसिंग हो रहा, तो वो भी आपका साथ साथ में क्लियर हो जाए. अगर किसी को किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो आप साथ में नोट डाउन कर सकते हैं. बट अबाउट द नेक्स्ट वन. स्टेक मीन्स पुख्ता या फिर चिपकना, उस सेंस में हम यूज करते हैं वर्ड. नेक्स्ट. मैनेज, इंतजाम करना. नेक्स्ट. एडमिट, कबूल करना, मान लेना, एतराफ करना. नेक्स्ट. एडवांटेज, विर्चू, फायदा, नेकी. नेक्स्ट. इम्पैक्ट, असरअंदाज होना, असरात. नेक्स्ट. अफेक्शन मीन्स, तो अफेक्शन एंड लव, हाउ दे आर सिनोनिम्स? Affection is somehow both have the same meanings. For example, if you talk about a father's love for her daughter, तो हम आम लफ्जों में उसको अफेक्शन भी कहते हैं, बट नो डाउट दैट्स अ लव. तो दोनों तरह से you can say both are the forms of the love, we can say. Next. Affluent. Prosperous means, प्रॉस्पेरस तो खुशहाल हो गया या खुशहाली. एफ्लुएंट क्या है? मालदार. तो बना, जो मालदार है वो खुशहाल है. ओके, नेक्स्ट. आफ्टर, लेटर. नेक्स्ट. अपॉइंट एंड नॉमिनेट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपॉइंट एंड नॉमिनेट? करेक्ट. मुंतखब, मुकर्रर करना. स्लाइड सा डिफरेंस ये है कि अपॉइंटमेंट में जो है वो अनाउंसमेंट्स नहीं होती, मुकर्रर कर दिया जाता है, जिसको भी अपॉइंट करना होता है अपॉइंटमेंट्स हो जाती है. और जो नॉमिनेशंस होती हैं उसमें अनाउंसमेंट्स होती हैं. जिस तरह के आपके ये देखते हैं अवार्ड शोज वगैरह देखते हैं, तो उसमें नॉमिनेशंस होती हैं, वो भी होती उस पोस्ट के लिए, इसके लिए अपॉइंटमेंट ही होती है, बट दैट इज इन द नॉमिनेशंस फॉर्म, जो अनाउंस प्रॉपर अनाउंस करके की जाती है. बट अबाउट द नेक्स्ट वन. appreciable, appreciable काबिल तारीफ, and considerable काबिल गौर. Next. Near. Next. About, अभी इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, but about next one. बाकी होना. Next. 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 Artificial means
ठीक कह रहे हैं. Everything that is made by man, definitely that is artificial, and everything that is made might be that is nature. But for the next one, okay, इकट्ठे करना. What's the next word? Agile. Any idea about this word, agile? Sorry? हाँ, एक एनिमल होता है, स्पेसिफिक एनिमल होता है, उसको रिलेट किया जाता है समहाउ बॉयज के साथ किसी कैरेक्टरिस्टिक की बिना पे. एनर्जी आप कह सकते हैं, राइट? कैन यू गेस द नेम ऑफ दैट एनिमल? ओह, शेर. हाँ, भेड़िया. भेड़िया फुर्तीला होता है. ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? ना आप शेर है ना आप भेड़िया है, कुछ और बोलो. मड़ी? कौन बोला? ये नहीं बोला. हाँ, जब बात हो रही है फुर्तीलेपन की, क्विक निम्बल के जो एग्जैक्टली मीनिंग होते हैं, दैट इज क्विक एंड सडन मूवमेंट्स. सो दैट्स द ईगल इज एन एनिमल. हाँ, pero no, that is monkey. So anyhow, agile means, हाँ, यहाँ पर बात हो रही है बॉयज की, मेल्स की. Anyhow, agile, nimble. Agile means energetic, active, फुर्ती. nimble के भी सेम मीनिंग्स होते हैं, having quick and sudden, doing quick and sudden movements. तो agile, nimble अगर आपको एग्जाम में, कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में काफी दफा रिपीट हो चुका है ये वर्ड. तो अगर एग्जाम में आपको स्किप हो जाता है एजाइल, निम्बल, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक से याद आ जाएगा, बंदर की खुसूसियात से समहाउ आ जाएगा. एनी हाउ, नेक्स्ट वर्ड इज हेल्प, इमदाद. नेक्स्ट एम्बिशन, ऑब्जेक्टिव, मकसद. नेक्स्ट वार्निंग. नेक्स्ट एलाई मीन्स फ्रेंड, दोस्त. नेक्स्ट nearly, तकरीबन. नेक्स्ट हैरानगी, हैरानी होना. नेक्स्ट नेक्स्ट ओके, मिकदार. नेक्स्ट ancient means, what's the difference between both of these words? अब दोनों के मीनिंग्स सेम है, लेकिन जब हमारे पास एग्जाम में आ जाता है अगर एमसीक्यू फॉर्म में, तो फिर हम स्टेटमेंट से जज करेंगे. अगर तो नियर पास्ट की बात हो रही है तो फिर उसमें हम वर्ड ओल्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बात हो रही है बहुत ज्यादा पुरानी एज की, कदीम चीज के बारे में किसी की बात हो रही है, तो वो फिर क्या होगा? एंशियंट होगा. सो है तो सेम मीनिंग्स, बस आपने इसका जो है कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना है कि किस सिचुएशन में क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं, और बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट इज एंगर, इरिटेशन, wrath. एंगर मीन इरिटेशन, तंग होना. एंड व्हाट इज wrath? एनी आइडिया? Any idea? Wrath is the extreme form of anger. शदीद गुस्सा होने को कहते हैं wrath. तो वही एंगर की जो एक्सट्रीम फॉर्म होगी, एक्सट्रीम सिचुएशन होगी, दैट इज wrath. नेक्स्ट वर्ड annually. Oh, annoy, bother, irritate, same thing. Next yearly, सालाना. नेक्स्ट हाँ, next is anonymous. Anonymous means गुमनाम, नाम ना होना, पहचान ना होना, उस सेंस में हम यूज कर सकते हैं नेमलेस. नेक्स्ट
What's the difference between both of these words? Synonyms तो सब हैं ही हैं. ये डिस्कस कर लेते हैं कि किसी और सिचुएशन में वर्ड आ जाए या कहीं आपकी कॉम्प्रिहेंशन में यूज हो रहा हो तो आप अंडरस्टैंड कर पाए. और हर जगह पे कंफ्यूज नहीं होते, कहीं पे डिफरेंस नहीं भी होता, एग्जैक्ट सेम मीनिंग्स भी होते हैं. हैव द सेम मीनिंग्स. कि हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, while we are having a physical conversation, तो वहां पर हम क्वेश्चन आंसर का वर्ड यूज कर लेते हैं, and while we are having the chat form of conversation and we use the word reply, but both have the same meanings answer. Next is sides के अलावा, इसके अलावा. Next, apart from, except, same meanings. Next, apparent, obvious, clear, वाजे. Next, appealing and attractive. क्या माने हैं? Good. कौन बोला? और कशिश सबसे पहले किसने बोला था? आपने. अच्छा, आपने बोला. Okay, nice. ठीक है. Appealing. There are some words जो हम दोनों genders के लिए यूज नहीं कर सकते. If you talk about the female gender and males, तो what do you think, ये जो attractive and appealing word है हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? अपने आप को भी कोई अहमियत दो. Yes, we can use these words most of the time for males. Appealing and attractive personality we use for males. Next is, what's the next word? Okay, seems I don't know. Next, applicable, relevant. Okay. Next, assess, evaluate. Evaluation से मुराद क्या है? असेसमेंट्स होती थी आपकी स्कूल में, कभी असेसमेंट्स हुई हैं? जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं या जो आपके मंथली टेस्ट होते हैं वो आपकी असेसमेंट्स ही होती हैं, जिसमें इवेलुएट किया जाता है, इवेल्युएशन होता है, जायजा लिया जाता है आपकी परफॉर्मेंस का. सो असेसमेंट या इवेल्युएशन मींस जायजा लेना. नेक्स्ट, असाइनमेंट, जॉब, वर्क, काम. नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें लाजमी नहीं है उर्दू मीनिंग क्लियर हो, इंग्लिश में अगर आपको क्लियर है, जैसे एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, इट्स क्लियर टू यू. अगर इसका आप अंजुमन करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, दैट्स द उर्दू मीनिंग. सो वहां पर आपको जरूरत नहीं है. जहां पर आपको किसी वर्ड का नहीं मीनिंग क्लियर हो रहा तो आप उर्दू मीनिंग देख सकते हो. बेटर कि आप सिनोनिम्स ही याद रखें ताकि आपको राइटिंग और आगे रीडिंग स्किल्स में या कॉम्प्रिहेंशन में आपको हेल्पफुल रहे. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? assume, imagine, मतलब तसव्वुर, तखय्युल, ख्याल. और नेक्स्ट इज गारंटी, यकीन दहानी. नेक्स्ट मीन्स. नेक्स्ट, appealing. Next, absent, again the same word. Next, terrible. Okay, now I'm gonna give you 8 मिनट दे. I'm gonna give you 8 minutes. जो फर्स्ट लाइन है हमारी सिनोनिम्स की और वर्ड की, ये आप लोग करेंगे और सेकंड लाइन आप लोग करेंगे. 8 मिनट के बाद मैंने आपसे सुनना. क्लियर? स्टार्ट लर्निंग नाउ. फर्स्ट लाइन अबंडन वाली आप लोग करेंगे, ये पूरी लाइन. एंड सेकंड वाली आप लोग करेंगे, बिकॉज एजाइल स्टैंड्स फॉर बॉयज. रेड शर्ट याद हो गया? हाँ, कर रहे हो तो गपशप क्यों चल रही है? मुस्कुरा मुस्कुरा के सुना रहे हो. आपको और मीनिंग आते हैं, आप साथ लिख रहे हो, वेरी गुड. लेकिन जो यहाँ पर गिवन है वो आपने याद करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको आता है.
ये भी ऑलरेडी आपको आता है, लेकिन ये आपको शायद नहीं आता या पक्का नहीं है। और एग्जाम में अगर ये आ जाएगा तो आप कर लोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है। ये आ जाएगा तो आप फंस जाओगे। तो फिर हमें कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, जो हमें नहीं आता। आखिरी 1 मिनट। एक्सक्यूज मी मैम। मैम एक्सक्यूज मी। Stop reading now. Books should be closed. Stop learning. Books should be closed now. It's not a test at all. Class activity है, आपको आता है, so that's well and good. नहीं आता तो no issues. Issues कल होंगे जब मैं दूंगी याद करने के लिए, जब oral test होगा, right? जी बेटा, abundant. बैठे बैठे बोलते जाएं. Okay, good. Abundant. No. It's, what's the right pronunciation? Desert. Good. About. बोलते जाएं आगे. Okay. Abroad. Absent. आवाजें क्यों आ रही है? उनको डिफरेंट दिए, आपको डिफरेंट दिए है, टाइम कम है, दोनों चीजें तैयार हो जाएंगी। जब वो सुनाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, जब आप सुनाएंगे तो उनका क्लियर हो जाएगा। इट डजंट मीन अगर वो सुना रहे हैं तो आप गपशप कर सकते हैं। सो बी अटेंटिव प्लीज। इट्स योर टर्न। आप तीनों की हो गई ना, इट्स योर टर्न नाउ। यस। अकम्प्लिश, एक्ट, एक्ट एक्ट, नाइस। एडिशनल, एडमिनिस्टर, गुड। एडमिट, वही वर्ड जो आप डिस्कस कर रही थी। नेक्स्ट, एडवांटेज, ओके। इफेक्ट, आपकी टर्न है। आई थिंक इनकी थी। एनी हाउ, अफेक्शन, एफ्लुएंट। अभी हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, जो एफ्लुएंट होता है वो इट्स ऑलराइट, नो इश्यूज। नेक्स्ट, वेरी नाइस। अपॉइंट, इट्स ओके। अपॉइंट, नेक्स्ट। अपॉइंट, ये जो बाद में आता है कहाँ से आता है? जी, एप्रिशिएबल। नेक्स्ट, एप्रिशिएबल, somehow. Next, same word, appreciable. Next, considerable, good. Next, aroma, good. And the last one, artificial, very nice, good. Clap for this side, please. 2-3 शहजादों के अलावा बाकी सबने बहुत अच्छा सुनाया है। कल आपसे अच्छे से सुनूंगी मैं, जिन्होंने आज अच्छे से नहीं सुनाया। Anyhow, let's start from here. मोहम्मद आसिफ कल सुनेंगे आपसे। जी बेटा। एम, गुड। नेक्स्ट, एड, एजाइल, अलार्म, गुड। नेक्स्ट, अम्यूजमेंट। बाद आप सुना दें। अम्यूजमेंट, अमाउंट, क्वांटिटी, गुड। एंशियंट, ओल्ड, एंगर, रैप, ओके। annoy,
No, annoy. Irritate, ठीक है. Annually. Nice. Anonymous. Good. Answer. Apart from. Okay. Appealing. Applicable. Sorry. Usable. Assess. Test, yeah. Assess. Evaluate. Evaluation. Good. Assignment. Spellings क्या है? Good. जी बेटा. Good. Assume. Okay, nice. Assure. Guarantee, ठीक है. Astonish. Nice. Attractive. Away. Away. Awful. आप दोनों के लिए कुछ बचा ही नहीं है. Amount. Quantity and ally. Very nice, very nice. Now clap for this side, please. Yes, man. वैसे आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं. इन्होंने अप्रिशिएट किया था आप लोगों को इन अप्रोप्रिएट वे. Anyhow. ओके. अच्छा, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल लगी आपको? अगर 8 मिनट में आप ये याद कर सकते हैं क्लास में बैठे बैठे, और अगर रिवाइज करते हैं घर जाके, डिफिकल्ट थिंग आई थिंक सो. चले, अभी वी डू हैव 4-5 मिनट्स. कुछ और पढ़ ले. कुछ और पढ़ लेते हैं, पूछना मुनासिब नहीं होता. नेक्स्ट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द लेटर बी. असेंबली और मीटिंग है, उसके अलावा बी पे आ जाए. बैलेट मींस पोल. पोलिंग स्टेशन का वर्ड सुना है? क्या होता है? वोट कास्टिंग. सो बैलेट इज द सिस्टम ऑफ कास्टिंग वोट. तो बैलेट क्या हो गया? पोलिंग सिस्टम, वोट डालने का तरीका, या वो जो कुछ भी है उस सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो. बेयर. नेक्स्ट, विदाउट सेंस में आप लेते हैं. नेक्स्ट इज डिफीट, शिकस्त. नेक्स्ट, pretty. Now this is the term we use only for females. We can never use these terms for males. Next, commence, start, आगाज, इब्तदा. Next, next, plausible. Plausible, काबिल फहम. Next, bendy, flexible, लचकदार. Next, next, beneficial, favorable. Next, anyway. Next, tender, soft, delicate. Next, bizarre, weird, strange. Next, accused, ये तो repeat हो रहे हैं word. Next, innocent, मासूम. Next, explored, फटना. Next, bother, annoy, irritate. Same words. Next, department. Next, बहादुर. Next, courage, बहादुरी. Next, collapse. Next, bright, shining. Next, fantastic. Next, bring something back. Bring something back. Reintroduce, दोबारा से तारुफ करवाना. Next, bring something on, वजह. Next, wide, वसी. Next, accumulate, जमा करना. Next, तिजारत. Next, have the same meanings again. Next, buy, purchase, खरीदना या बेचना. Okay, कोई मुश्किल? बहुत easy. Tomorrow, inshallah, I'll take first the oral test of letter A and letter B. Then we will move towards the letter C. Is that clear?
till now, if there is any question, you may ask, please. Sorry? Explode, फटना, धमाका होना, उस सेंस में आप यूज कर सकते हैं.